Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, my dear students. I welcome you again with another new video lecture on gravitation. Today we will be solving some of the numericals based on gravitation. So let me start. The first numerical is written on the board. A stone dropped from the top of a tower takes 5 seconds to reach the ground. Okay, एक स्टोन जो है टावर पे हम गिराते हैं. इट टेक्स 5 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड. 5 सेकेंड लगते हैं ग्राउंड को टच करने के लिए. कैलकुलेट फर्स्ट velocity of the stone on reaching the ground. First we have to calculate the velocity and then second the height of the tower. So firstly we have to calculate the velocity of the stone when it reaches the ground. That means we have to calculate the final velocity. So the initial velocity of the stone is 0 because we are dropping it from the top of the tower. So when we drop it, therefore the initial velocity is 0. Therefore this stone initially begins with 0 velocity. Okay. So the initial velocity of the stone, I can write it as u is equal to 0 meter per second. So u is 0 meter per second, and time taken to reach the ground is 5 seconds. Here we can see this is 5 seconds. So I can write t is equal to 5 seconds, and the acceleration due to gravity is given, which is g. Okay, therefore acceleration due to gravity g is here given as 9.8 meter per second square. So I can use the equation, using equation v is equal to u plus at. Okay, this is the equation where I can get the final velocity, because u is 0 here, a is given and t is given. So I can calculate the final velocity, which is very easy to calculate from this equation. So v will be equal to u is 0, so therefore this will become 0, and a is here acceleration due to gravity. This is 9.8. Okay, this is 9.8, and t here is 5. So when I calculate this, it comes out to be 49 meter per second. So v here is 49 meter per second. So this is final velocity. तो जब स्टोन ग्राउंड पे पहुंचता है तो उस टाइम यानी कि लास्ट जब स्टोन टच करता है ग्राउंड को, तो उस टाइम उसकी वेलोसिटी 49 मीटर पर सेकंड. And now we have to calculate the height of the tower. What is the height of the tower? Here we have to calculate the h. That means the distance. We know that from the equation s is equal to ut plus half of at square. So in place of s I can write h, height of the tower. ठीक है, क्योंकि हम कहाँ से स्टोन ड्रॉप करते हैं? फ्रॉम द टावर, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर. वहां से हम स्टोन ड्रॉप करते हैं, और जब स्टोन ग्राउंड पे पहुंच जाता है तो हम जो है हाइट ऑफ द टावर आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम जितना ये स्टोन डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उतनी ही टावर की हाइट होगी. ठीक है, तो s की जगह हम h लिख सकते हैं. Okay, so I can write here as h, height of the tower, in place of s. So therefore h is equal to ut plus half of at square. So which is equal to u is 0, t is 5, so this becomes 0 plus 1 by 2, and a is 9.8. Okay, 9.8, and t is here 5, and it is 5 square.
When I calculate it, it comes out to be 122.5 meter. 122.5 meter is the height of the tower. Okay, so this is the answer of first part and this is the answer of second part. Before moving forward, here हम कुछ equations यहाँ पे लिखेंगे. तो जो equations of motion हमने पहले ही derive की थी, okay? चैप्टर मोशन में हमने वहाँ पे जो equations थी वो कुछ इस तरीके से थी. V is equal to U plus AT, U plus AT, and second equation was S is equal to UT plus half of AT square. This was second equation. And third equation was V square equal to U square plus 2AH. Okay? या हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं V square minus U square. इस U को हम यहाँ पे लिख तो ये जो है एक ही बात है, is equal to 2AH. तो ये तीन इक्वेशंस हमने डिराइव की थी. अब यहाँ पे आप नोट कर दीजिए कि जब फ्रीली फॉलिंग बॉडीज होंगे, ओके, फ्रीली फॉलिंग बॉडीज फॉल विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि यहाँ पे ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए वैलिड थी. दीज इक्वेशंस वर वैलिड फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडीज. अगर कोई बॉडी जो है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही है तो हम यहाँ से जो है दूसरे वैल्यूज निकाल सकते हैं. फॉर एग्जांपल S निकाल सकते हैं, U निकाल सकते हैं या A निकाल सकते हैं. तो इसी तरीके से द फ्रीली फॉलिंग बॉडीज फॉल विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. फ्रीली फॉलिंग बॉडीज क्या होती है, वहां पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती है. द थ्री इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ बॉडीज derived here, which we have derived earlier in the earlier classes. These are valid for the motion of these bodies. That means freely falling bodies. Okay. So this acceleration A, this acceleration will be replaced by G, acceleration due to gravity. Okay. So this acceleration A will be replaced by G, acceleration due to gravity, and this S, okay, this S is the distance. It will be replaced by height. Okay, जब आप जो है कोई बॉडी जो है फ्रीली फॉल कर रहा है तो हम उसकी हाइट निकाल सकते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल हमने स्टोन ड्रॉप किया है तो वहां पे हम कहेंगे कि उसकी हाइट क्या थी, वो किस हाइट पे था, क्योंकि जब वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो हम आराम से उसकी हाइट भी निकाल सकते हैं. तो ये जो S है यहाँ पे ये H से हम रिप्लेस कर सकते हैं. Therefore these three equations become like this. These three equations become V is equal to U plus GT. Okay, acceleration due to gravity, and H is equal to UT plus half of GT square. It becomes like this. Okay, UT plus half of GT square, and V square is equal to U square plus 2GH. तो यहाँ पे मैंने एक्सेलरेशन की जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रखा और इस डिस्टेंस की जगह हाइट रखा, क्योंकि जब फ्रीली फॉली बॉडीज होंगी तो वहां पे हम हाइट निकाल सकते हैं. एक और न्यूमेरिकल है. The numerical reads, a stone is allowed to fall from the top of a tower that is 100 meter high. समझ लो ये एक टावर है तो इसके टॉप पे हम एक स्टोन ड्रॉप करते हैं. दिस इज द स्टोन, इसको हमने ड्रॉप किया एंड द हाइट ऑफ दिस टावर इज 100 मीटर. इसकी जो हाइट है 100 मीटर. एट द सेम टाइम अनदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स. तो इसी टाइम जब हम यहाँ पे स्टोन ड्रॉप करते हैं तो इसी टाइम हम यहाँ पे एक स्टोन वर्टिकली अपवर्ड जो है प्रोजेक्ट करते हैं, वर्टिकली अपवर्ड्स.
विद ए स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकंड। तो इनिशियल स्पीड इसकी 25 मीटर पर सेकंड है। इनिशियल स्पीड इसकी हम 25 मीटर पर सेकंड जो है स्पीड देते हैं। कैलकुलेट हमें करना है व्हेन एंड वेयर टू स्टोन्स मीट। तो कहाँ पे ये दोनों स्टोन्स मीट करेंगे, टकराएंगे आपस में। कि अगर हमने इनको एक ही लाइन में प्रोजेक्ट किया है तो ये कहाँ पे मीट करेंगे। लेट्स फाइंड आउट। सो वी हैव टू फाइंड वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस। इसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की और इसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की। तो कहाँ पे इन्होंने जो है मीट किया है। सो लेट्स नाउ फाइंड। तो पहला हम देखेंगे स्टोन फर्स्ट के लिए। ओके, पहले हम जो है स्टोन फर्स्ट के लिए देखेंगे। फॉर एग्जांपल इफ दिस इज स्टोन फर्स्ट एंड दिस इज स्टोन सेकंड। सो फॉर स्टोन फर्स्ट दैट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, हम 0 है, ठीक है ना। इनिशियल वेलोसिटी यानी कि हम फर्स्ट स्टोन की लेते हैं। फॉर फर्स्ट स्टोन ओके, इनिशियल वेलोसिटी हमें यहाँ पे मिलती है 0 मीटर पर सेकंड। ठीक, u इज 0 मीटर पर सेकंड। एंड हमें यहाँ पर पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हम यहाँ पे 10 लेते हैं अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, तो डिस्टेंस यहाँ पे इस स्टोन ने कितना कवर किया है। इस टावर की डिस्टेंस जो है 100 मीटर है, लेकिन हमें ये बताना है कि इस स्टोन ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है ताकि ये जो दो स्टोन से ये जो है टकराए या मीट करे। तो हम इसकी डिस्टेंस h लेते हैं। ओके, लेट इट्स डिस्टेंस इज बी h, हमने इसका नाम h रखा है। ओके, तो हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर। तो हम यहाँ से जो है h कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज इक्वल टू u यहाँ पे 0 है तो ये जो है 0 बन गया। एंड सॉरी यहाँ पे g है। ओके, दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे। तो h इज इक्वल टू 1/2 ऑफ gt स्क्वायर। सॉरी, g की जगह हम 10 लेंगे, ठीक है। g की जगह हम 10 लेंगे, t स्क्वायर तो यहाँ पे कैंसिलेशन हो गई, विच इज इक्वल टू 5t स्क्वायर। तो h हमारा यहाँ पे आ गया 5t स्क्वायर। ठीक, h कम्स आउट टू बी 5t स्क्वायर। तो हम फिर सेकंड स्टोन का देते हैं। फॉर सेकंड स्टोन इनिशियल वेलोसिटी क्या है सेकंड स्टोन की, तो हम इसको प्रोजेक्ट करते हैं इनिशियल वेलोसिटी से 25 मीटर पर सेकंड, इसकी इनिशियल वेलोसिटी। ओके, तो इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकंड, दिस इज u। एंड g यहाँ पे क्या है, g हमने अप्रोक्सीमेटली 10 लेना है, ठीक है ना। लेकिन इस टाइम में -10 है क्योंकि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अपोजिट है, ठीक है ना, ग्रेविटी के अपोजिट है। तो हम इसको -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे g। ओके, एंड नाउ डिस्टेंस क्या होगी। डिस्टेंस देखिए, हमने इसकी डिस्टेंस h ली, ठीक है। टोटल डिस्टेंस क्या है टावर की 100, टोटल डिस्टेंस 100 है टावर की। और इसने जो डिस्टेंस कवर किया है, मान लो ये यहाँ पे पहुंच गया, मान लो ये जो स्टोन है ये यहाँ पे पहुंच गया। ओके, तो इसकी डिस्टेंस हमने h ले ली। तो इसकी डिस्टेंस क्या रहेगी। अब इसकी डिस्टेंस रहेगी 100 माइनस h, 100 माइनस h, ठीक है, सिंपल है क्योंकि टावर की डिस्टेंस 100 है और इस स्टोन ने 100 h जो है डिस्टेंस कवर किया है। तो इसकी डिस्टेंस अब कितनी रही 100 माइनस h, 100 माइनस h। तो 100 माइनस h डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा जब ये दोनों स्टोन्स आपस में जो है टकराएंगे। सो देयरफॉर द हाइट ऑफ द
दिस स्टोन इज 100 माइनस h. ठीक है, डिस्टेंस traveled is equal to 100 minus h. So from this equation h is equal to ut plus half of at square. यहाँ पे इसकी डिस्टेंस क्या है, 100 minus h. So we can write the equation as 100 minus h. 100 minus h is equal to u यहाँ पे 25 मीटर है, 25 into ut plus half of g हमने 10 लिया है अप्रोक्सीमेटली, लेकिन यहाँ पे -10. ओके, सो दिस इज -10 एंड t square, -10 into t square. So this comes out to be 25 into t. This is 25t minus 2 and 10 gets cancelled. 10 minus 5t square, okay? Minus 5t square. Minus 5t square. तो इस इक्वेशन को हम इक्वेशन फर्स्ट नाम रखते हैं, इसका नाम इक्वेशन सेकंड रखते हैं. सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड अगर आप यहाँ पे देख लो h इज इक्वल टू 5t स्क्वायर, तो हम इस h का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड में. ओके, सो दिस कम्स आउट टू बी 100 माइनस 5t स्क्वायर. h की जगह हम 5t स्क्वायर लेंगे, इज इक्वल टू 25t माइनस 5t स्क्वायर. ओके, सो 5t स्क्वायर माइनस 5t स्क्वायर गेट्स कैंसल्ड हियर, तो बचा क्या, 100 इज इक्वल टू 25t. सो t कम्स आउट टू बी 100 divided by 25, which is equal to 4 seconds. So t comes out to be 4 seconds. तो यहाँ पे हम आराम से निकाल सकते हैं अब h. Therefore h is equal to, therefore from equation first h is equal to 5t square. 5 into t square क्या है यहाँ पे 4 है, तो 4 square, which is equal to 5 into 4 square is 16, which is equal to 80 meter. Therefore it comes out to be 80 meter. तो ये वाला जो स्टोन है, फर्स्ट स्टोन, it will cover the distance 80 meter. 80 meter distance कवर करेगा. एंड सेकंड स्टोन की हाइट क्या है, सेकंड स्टोन की हाइट जो है वो 100 माइनस h है. ठीक है ना, सेकंड स्टोन की हाइट 100 माइनस h है. तो h का क्या आया यहाँ पे, h 80 मीटर आया. ओके, तो हम लिख सकते हैं कि ये जो सेकंड स्टोन की डिस्टेंस है, दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ या हाइट ऑफ सेकंड स्टोन. Second stone is what? 100 minus h. 100 minus h. तो 100 minus h, 100 minus h, h क्या आया 80, which is equal to 20 meter. तो ये जो दोनों स्टोन्स है, फर्स्ट वाला स्टोन 20 मीटर कवर करेगा डिस्टेंस, और सेकंड वाला ये फर्स्ट स्टोन 80 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा, और सेकंड स्टोन जो है 20 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा. तो ये जो है आपस में यहाँ पे टकराएंगे 80 मीटर डिस्टेंस पे, और इसने जो है जब 20 मीटर डिस्टेंस की कवर की होगी तो ये आपस में मीट करेंगे.